السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة ثم ذكرنا يا رب يا مولانا ہم غریبوں کے رب کے ساتھ مالک الخیار رسول مختار مراد الرشیدی شفیع الجلیل اور الرسول احمدی المتقرا وسلم استقام روحی خیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت مقدسہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم پر نوازہ درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سيدنا وشفيعنا وقديرنا وقدوتنا ومولانا محمد النبي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دائما ابدا. معزز حمید استاد الاساتذہ استاذی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج محمد اسلم القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ وقال اللہ تعالی ان دعاؤں کے سہارے میں چند منٹ کے لیے نقشائی کرنے کی ضرورت سے حاضر آئے. تلاوت کرنا آیت کے اوپر انشاءاللہ العزیز بہت مختصر مگر جامع گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گی. بڑا مشہور زمانہ یہ شعر ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری. گویا ہمارے معاشرے ہمارے سماج سے جانے والا ہر ایک فرد ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ میں جانے والا آخری ہوں. آج میرا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، آج میری باری ہے کل تیری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں الا ماشاءاللہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محدودین بندوں کو پہلی بات کرو، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا. یہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، یہ آدمی بلبلا ہے پانی کا. معزز سامعین یہ 3 اشعار میں لے کر، اور یہ تینوں اشعار ایسے ہیں کہ جن اشعار کو ہم لوگ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور شاید آپ میں جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی عمر تقریباً 60 سال یا 70 سال کی ہوگی وہ بھی اپنے بچپن سے سنتے چلے. اب ان تینوں اشعار کے شاعر کون ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن کبھی ہم نے ان اشعار پہ توجہ دینے کی کوشش نہیں، گہرائی میں اتر کر ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. کیا شاعر ایک شعر کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے. ایک شعر فقط کہ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، یہ آدمی بلبلا ہے پانی کا. بھلا اس پانی کے بلبلے کی کوئی حیثیت ہے اس انسان کے ساتھ جسے اشرف المخلوقات کہا گیا؟
तमाम मखलूकों में जिसे सबसे अशरफ, सबसे आला कहा गया, सबसे ऊंची शान वाला कहा गया, सबसे बड़ा मर्तबा इस इंसान का, और कहां वो पानी का बुलबुला बेहैसियत, जिसकी कोई कदर कीमत नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं। कभी वो साफो शफाफ पानी की सतह पे होता है तो कभी किसी गंदे नाले में भी उसका वजूद होता है। और शायर ने उस पानी के बुलबुले को इंसान जैसे अजीम मखलूक के साथ मुमासलत दे दी कि क्या ठिकाना है जिंदगानी का, ये आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीजों, बात मर्तबे की नहीं है, बात रुतबा और शान की नहीं है, बात मकाम मरातिब की नहीं है, बात इंसान की जिंदगी की है। आखिर इंसान की जिंदगी की हैसियत क्या है, इंसान की जिंदगी की अहमियत क्या है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह से एक पानी का बुलबुला कोई तैयार होते ही फूट जाता है, कोई बुलबुला तैयार होने के बाद पानी की सतह पे बहता है, फिर आखिर वो फूटता है, और कोई बुलबुला ऐसा होता है जो मारी से वजूद में आता है, पानी की सतह पे बहते हुए दूर तक जाता है, और बिलाखिर एक मामूली से तिनके के साथ उसका टकराव होता है, और वो आखिर वाला बुलबुला भी इस दुनिया को, इस आखिर वाला बुलबुला भी फूटता हुआ नजर आता है। ब्याही नहीं इंसान की जिंदगी है। कोई अपनी माँ के शिकन से अभी दुनिया में उसका वजूद होता है, मौत उसे उचक लेती है। किसी के दूध पीने का जमाना है, मौत उसे अपने आगोश में लेती है। कोई जवानी की दहलीज में कदम डालता है, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। और उस अखीर वाले बुलबुले की तरह अगर कोई 80 साल, 90 साल या 100 साल जिंदगी पाता है, फिर आखिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा मौका, एक ऐसा वक्त आता है कि वो इंसान इस वाली दुनिया को अलविदा कहता है। पता ये चला कि ये दुनिया फानी है, यहाँ रहने वाले लोग फानी है, सारी चीजें फानी है। तो जब ये दुनिया फानी है, यहाँ रहने वाले लोग फानी है, फिर यहाँ हम रहकर अपनी इस दिल को इस दुनिया से इतना क्या लगाए कि इस दुनिया को हासिल करने में हम अपने हाथों से अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लें। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, ये आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीज, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये इंसान की जिंदगी है क्या? अभी मैंने इस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मफ़हूम इस आयत मुक़द्दसा का है कि वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, मौत और जिंदगी को पैदा किया, तो क्यों पैदा किया? आखिर जिंदगी के साथ साथ मौत को, वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है, लियब्लुवकुम, इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हारा इम्तिहान हो, तुम्हें आजमाया जाए। किस बात से? किस बात का इम्तिहान हो? अल्लाह फरमाता है, अय्युकुम अहसनु अमला, इस बात की आजमाइश हो कि तुम्हें कौन है जो सबसे बेहतरीन अमल करने वाला, तुम्हें कौन है जो सबसे अच्छा अमल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो चाहता तो इंसान को सिर्फ हयात बख्श देता, सिर्फ जिंदगी बख्श देता, मौत को पैदा ही न करता। लेकिन मेरे अजीजों, आपने सुना होगा बार उलमाए किराम की जुबानी, जब इंसान की तख्लीक हुई तो इब्लीस लाईन के पेट में दर्द उठा, और इंसान जब इस दुनिया में आया और इंसान की वजह से शैतान जब आ गया, खुदाबंदी का मरदूद करार दिया गया, तो उसने अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम खाकर कहा कि तेरी इज्जत व जलाल की कसम, जिस जगह पे तेरी ये मखलूक जिसे इंसान का नाम दिया गया है, जहां ये मखलूक जाएगी वहीं मैं भी आबाद होने वाला हूँ। शैतान लईन ने अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहा था कि मैं तेरे इन बंदों को भटकाऊंगा, तेरे इन बंदों के दिलों में वसवसे डालूंगा, तेरे बंदों को राह रास्त पर न चलने दूंगा, इनसे गुनाह अज़ीम मैं कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद हुआ कि इब्लीस जा, तुझे ये इख्तियार है, तुझे पावर है कि मेरे इन बंदों को भटकाओ, इनके दिलों में वसवसे डालो, इनसे तुम गुनाह अज़ीम कर दो, लेकिन जाओ मैं अपने इन बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। ये मेरे बंदे तेरे बहकावे में आकर, तेरे वसवसों में आकर अगर ये गुनाह अज़ीम करके मेरी बारगाह में सर सुजूद होंगे, ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझसे अपने गलतियों की माफी मांगेंगे, तो मैं अपने इन गुनाहगार बंदों के गुनाह को माफ कर दूंगा। इब्लीस लाईन में अल्लाह रब्बुल इज्जत के, अल्लाह तबारक व तआला के इज्जत व जलाल की कसम खाकर जब इस दुनिया में आया इब्लीस, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
जिंदगी के साथ मौत को पैदा किया कि मुमकिन है कि ये मेरे बंदे ये दुनियादारी में मशगूल होकर ये अपने बीवी और बच्चों की परवरिश में कहीं गुनाह में मशगूल हो गए कि शैतान लईन इस पर हावी हो गए और इसे अपनी आखिरत का ख्याल तक न रहे, इसे अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र तक न रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी के साथ मौत को पैदा किया ताकि मेरे बंदे शैतान के बाधा में जाकर उसके वसवसे में आकर दुनियादारी में मशगूल होकर अगर ये राह रात से भटक भी गए तो कम से कम मुझे याद करके न सही अपनी मौत को ही याद करके सही या अच्छे अमल करें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया वो इसलिए पैदा किया कि ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। किस बात की? तुम में से कौन है जो सबसे बेहतरीन अमल कर सकता है, सबसे ज्यादा अच्छा अमल कर सकता है। मेरे अजीज, जिंदगी और मौत क्या है? आज़ाए जिस्मानी का काम करना यही जिंदगी है। आंखें देख रही है, लोग कहते हैं जिंदा है। ज़बान बोल रही है, लोग कहते हैं जिंदा है। कान सुन रहे हैं, लोग कहते हैं जिंदा है। हाथ और पांव काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि जिंदा है। अगर आंखें देखना छोड़ दे, ज़बान बोलना बंद कर दे, कान सुनना छोड़ दे, हाथ और पांव काम करना छोड़ दे, सांसों का सिलसिला टूट जाए, लोग कहते हैं कि फला आदमी मर गया। आज़ाए जिस्मानी का काम करना इसी का नाम जिंदगी है और आज़ाए जिस्मानी का काम छोड़ देना इसी का नाम मौत है, इसी का नाम मौत है। और याद रखिए, जिंदगी अबदी है और मौत आरज़ी है। ये अलग बात है कि इस दुनिया की जिंदगी आरज़ी है, वरना हमें जो जिंदगी मिली है वो खत्म होने वाली नहीं है, नहीं होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वजूद बख्शा, आलम अरवाह में रखा, वहां हम जिंदा थे, आलम अमल में आए, यहाँ जिंदा है, आलम बरसत में जाएंगे, वहां जिंदा रहेंगे, आलम हश्र में उठाए जाएंगे, वहां जिंदा रहेंगे। फिर अल्लाह के अदल व इंसाफ की बुनियाद पर या अल्लाह के फज़ल व करम की बुनियाद पर चाहे हम जहन्नम की दागती हुई आग में जाए या जन्नत के बागो बहार में जाए, जहां भी रहेंगे जिंदा रहेंगे, जहां रहेंगे वहां जिंदा रहेंगे। पता ये चला कि जिंदगी खत्म होने वाली चीज नहीं है, जिंदगी अबदी है और मौत आरज़ी है। ये अलग बात है मेरे अजीजों, हम जिंदगी को आरज़ी समझ लिए और मौत को अबदी समझ लिए। हम ये समझते हैं कि मरे तो हमारा नामो निशान मिट गया, हमारा वजूद खत्म हो गया। नहीं, जिस तरह आलमे अरवाह से इस आलमे अमल में आने के लिए हमारे माँ बाप एक जरिया बने हैं, वैसे ही इस आलम अमल से निकलकर आलम बरसत में जाने के लिए मौत फकत एक जरिया, सिर्फ पाना है। देखिए ना, मौत अगर ना आए, हाथ पांव काम कर रहे हो, सांसों का सिलसिला चल रहा हो, आंखें देख रही हो, जुबान बोल रही हो, सब कुछ अगर जिस्मानी आज़ा काम कर रहे हैं, तो कौन बेटा अपने उस जिंदा बाप को जमीन के अंदर दफन करे? है कोई? या कोई बाप है जो अपने हाथों से अपने उस जिंदा बेटा को जमीन के अंदर ले जाकर दफन कर दे? लेकिन जाना तो है, बाकायदा खुदाबंदी का हाजिरी देनी है, अपने किए हुए अमाल का हिसाब भी देना है। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ जो कुछ भी करेंगे अपने किए हुए अमाल का हिसाब देना है। बाकायदा खुदाबंदी में जाने के बाद अब वहां जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई जरिया चाहिए। तो जरिया मौत है, इसलिए कि जब तक मौत आती नहीं है, लोग उस इंसान को अपने घर से बाहर निकालते नहीं, उसे कब्र के अंदर दफन करते नहीं है, उसके जिस्म को सुपुर्द खाक नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को फकत एक जरिया बनाया है ताकि ये इंसान दुनिया में रहकर जितने अमाल किए हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे, मेरे यहाँ आकर अपने किए हुए अमाल का हिसाब दे सके। हमने अपना हिसाब देने जाना है वहां। मेरे जो गुफ्तगू बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, जरूरत इस बात की है, ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है, बहुत मुख्तसर जिंदगी। देखे ना, आलम अरवाह में अहकाम शरिया हमारे ऊपर नाफिज नहीं, आलम बरज़ख में नहीं है, आलम आखिरत में नहीं है। ये जो छोटी सी जिंदगी के लिए बहुत मुख्तसर, बस 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी जिंदगी है, इतनी छोटी उम्र में क्या है? अभी से बात का मफहूम है, क़यामत का एक दिन दुनिया के इस 50,000 सालों के बराबर। अल्लाहु अकबर। क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 सालों के बराबर है। अब इस दुनिया में हमारी और आपकी जिंदगी है ही क्या? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल,
اب اس کا کمپیریزن آخرت کی زندگی سے کریں گے نا قیامت کے اسکیل والے سے، تو شاید قیامت کا 1 منٹ اور اس دنیا کی ہماری پوری زندگی۔ اس لیے وہاں کی زندگی کے سامنے اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک تنکے کے مانند، ایک ذرے کے مانند بھی نہیں ہے قیامت کی جو زندگی ہے میرے عزیزو۔ اور اسی مختصر سی زندگی میں ہمیں اعمال کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس زمین پر، اس دنیا میں ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اعمال کے لیے ہمیں آگے دے گئے۔ اب یہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے، چاہے اچھا کریں یا برا، اعمال ہمارے اچھے ہو یا برے ہو، یہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ہم سے یوم آخرت ہے، قیامت کے دن لے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیے، اور اس مختصر سی زندگی میں عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیے، ورنہ پھر آپ جب بند ہوگی سانسوں کا سلسلہ ٹوٹے گا، آپ آئے جسمانی کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی موت آئے گی سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، اب نہ آپ نماز پڑھ پائیں گے، نہ روزہ رکھ پائیں گے، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے موقع میسر ہے، آج کر لیجئے، اس موقع کو غنیمت جانیے، اور عبادتیں کر کے، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، تسبیح و تحلیل کر کے، اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، تاکہ آپ کی آنکھ بند ہو، لوگ آپ کو غسل دے، کفنائے، جنازے کی نماز پڑھیں، جیسے ہی قبر میں ڈالے وہاں سے آپ کی سکون والی زندگی آپ کو عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔